नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 2 के इस अंक में इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत है, एक बहुत बड़ा नाम, एक जाना पहचाना नाम, ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी एक बहुत बड़ा नाम कमा चुके, जिनको अगर मैं कहूँ ही ग्रेट स्टारी स्टोरीज मैस्ट्रो आलोक दास गुप्ता, जिनको बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है, ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया देश से बाहर भी उनको बहुत से पुरस्कार दिए गए हैं। और उनका जो नॉमिनेशन हुआ है, ग्रैमी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेशन हो चुका है उनका। बहुत सारे अवार्ड्स हैं और इंडिया से बाहर लॉस एंजलिस में वो बहुत संगीत की एक ऐसी सेवा कर रही हैं, जिसमें वो वहाँ के स्टूडेंट्स को जो इंडिया से बाहर हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको संगीत की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और खुद भी एक बहुत बड़ा नाम है, जिनको जिस तरह से मैं कह चुकी हूँ कि बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो प्रिविलेज है कि आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आलोक दास गुप्ता जी का। नमस्कार। Namaskar, and Kajalji, this is my pleasure to come all the way. And last night I was kind of a little bit nervous because I'm arranging a beautiful concert Indian time, 8 o'clock, through the web, Santur recital. Doing, when you stay in West, you have to do, in my language, we call to do the, if your shoe got with some problem, you have to do, and also you have to cook, you have to sit in the computer, all the things. So I went to bed at like 1:30, and now it's US time, Pacific time. We have three times over here. Now it's 5:30 in the morning. Your time is 7 o'clock. Good Yes, morning. yes. Good morning, Suprabhat, to everybody. And let me share my knowledge, not knowledge, whatever I Culture. gathered, Yes. my knowledge, starting from a small town called Jamshedpur, which is 200 miles from Calcutta. And I'm fortunate that I'm from there, and we call Tata Baba. That means the Tata. Now the Tata, he's couple of generation ago, Jamshedji Servanji Tata, he founded our city. We got education through their school, their college, their business management, Xavier relation. Everywhere Tata is there. And it's saying over there in the world, that's what I heard, that Tata makes the maximum money, but his income is very low because he gives us the knowledge, the light, the enlightenment, what we got from Tata. Thank you very much. Yes. And you, whatever you will tell me, and then I will go with that and tell people, Yes. the people will know what I'm doing here Yes. and how we do, what are the system. बिल्कुल, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, उसके बाद मैं नाट्य शास्त्र और संगीत पे आऊंगी। लेकिन पहला सवाल जो है वो ये है कि आपकी जर्नी कलकत्ता से लेकर एलए तक जो आपकी जर्नी रही है संगीत को लेकर, और जिसमें थिएटर का भी काफी रहा है, जिस तरह से हम यात्रा को लेकर बात कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं, आपकी जर्नी जो रही है। Ji, unfortunately, Jatra art in Bengal, it started in Bengal, and it's there is a two theory where I study. I'll tell later that there are two theory about music and Palagan, Jatra, and all of these. It's one is called indigenous, the theory. So in one part, you will see it started. And the other is from there it started, then it goes like a diffusion, gas, like that. So it everywhere. Just the best example of that one is rock and roll. Rock and roll started in Europe, came in America, not yet, the Beatles, I had a privilege to work with little bit George Harrison one time. Yes. So Yes. so what I'm telling, the diffusion theory. So when I was it was a Bihar state. I born there in a hospital there, Tata Hospital. When my first time I come to know about the Jatragan, and also it was coming to me as a normal thing, because not only Bengalis they enjoy, but everybody enjoys. Before 1957 or 53, I didn't remember, Jamshedpur was in Bengal.
Then it was the interchange between Purulia and Manbhum and Singhbhum, and then it came to to us. Means, it was still at that time the main language was Bengali. जी So yeah, so what happened when I was growing the Jatra Gan, I come to know, and I saw thousands and thousands people were enjoying. In the beginning, there is a beginning music over there, introduction, and that's later I come to know that that's called the prelude on that one. So in when I came in West, I saw all the opera like that. Opera is one of the biggest drama in West, and this why Indians, especially Bengalis, they use opera word like Natta Company opera, Sattambar opera like that. So it's long related with the West, the opera and Indian musicals. That's what I should say. yes So anyway, I raised there and I started to learn music. There was a very small funny thing happened. I was in sixth grade and I was coming from a steps like this from the big kind of highway, and I was coming like down. And then I come to know that from my heart it was a Sarod recital in radio. We don't have television at that time. So it at that time, when I was coming back from school, someday something happened. School was closed, so I coming and on the step, it from my heart it said Rag Tori, and I heard in the radio that it was so funny. I said that it's Rag Tori, and my friends said, so what is that? I said I don't know, but they're going to tell you in radio. They will tell that now it's you are listening to Sarod, and that was my later part guru, Ustad Ali Akbar Khan. Late Ali Akbar Khan was playing Sarod on that one and said, "Oh, now you are listening the Sarod recital of Ustad Ali Akbar Khan." So I come to know that, oh, this is so beautiful music. I told my dad. He said, "Yeah, your uncle plays also in Calcutta. I'll get a sitar," and then I started to learn. Then through the music, I come to know all this, the world, India, and I got an award also, Radio Sangeet on that one. And then I studied the Western music later on that one. Then from Jamshedpur was a small town. I started to go to Calcutta. I started to learn from the different teacher, different gharana, different style. In that meantime, I like to tell you something. My mom, she was not that highly educated, but she has one thing which is called the memory. My God, my wife always said, "You got that memory." I'm getting old, but everything she used to do memorize, and I saw that she started to do the acting. In and what can you do in a small town? But she did many acting, and I got very much close and I started to do the music like that. And in this respect, I like to tell my guru, who is like 1 or 2 years older than me. His name is Arindam Gupta. We call him Babla. First of all, the first time he came and he said that you have to play sitar and you have to organize this at that time about the movement. It's like Naksalwadi and that kind of thing. I said, I'm not interested in politics. So he said, no, this is a different. This is poetry from Rabindranath Tagore and this like that. So I really loved that one. I started to play and give the music on that one. I was in ninth grade when I started to work with him as a musician, and also in my town, I became very famous, because people used to come and my mom said, okay, help them. So I said that my charge is a lot of money. So they'll say, how much is that? I said, I started my career with 30 rupees. So I said, 30 rupees, you have to give all the sound, everything. My brother was in America, so he gave me a nice tape recorder, spool like that. So I started to do to the nature, to take the sound of the cricket like that. And then how to put that
whole thing to music, and that's called music concrete, the nature sound with the music. So gradually I developed with that. Then I got a chance to come to America. First I worked and I saved money in New York. I got a job in State Bank of India, and I started to play in restaurant gig, and then to the nightclub where I met with the world famous tabla player Ustad Zakir Hussain. He was also playing with Miles Davis, and then later I got a chance to play with him and his father also. But I was growing my career was growing from that. And in New York, when I came there, it was so fun because it's a small city, only 12 miles, but you can go anywhere under the the subways there. So it's so fun. And over there, I got to know about the drama, the music, the culture, like that. And then I started to work for the little bit in, not in Broadway, but they have a smaller kind of thing off of Broadway. But in India, I also worked like, who was, there were two styles I really loved. First of Sanskrit, forget about that. I loved Sanskrit drama, Mritchakatikam, like Yes, that. Bhat, Mritchakatikam, yes, then yes. Kalidas is all. I did one, Megho Meduro Medunium, it's about the rain. About Mhm. that in India, I worked on that, and then I went to Delhi and all, and then I came in America, the off of Broadway. What I studied in India from my guru, Bablada, that came perfect over there because I studied, and we used to watch and work also with the brittle breast. So, what is his concept? And then Stanislavski, which is a Russian guy, Stanislavski, and he did beautiful way of expression his drama. And the Yes, Jatragan, Palagan is affected. yes, They shout, they cry, they laugh, yes. and all this Navarasa makes the Mhm. drama. Yes. Navarasa makes that drama. So if anybody has any question up to here, I can give the answer if someone writing you, or you can Yes, yes. वी हैव सो मेनी हमारे पास बहुत सारे स्ट्रीम व्यूअर्स आए हैं। मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सुचित्रा गुप्ता जी है, बहुत दिल्ली रंगमंच का एक बहुत बड़ा नाम। लिखती है, म्यूजिक इज डिवाइन, इट्स बियॉन्ड मैन मेड बाउंड्रीज, नो लैंग्वेज, नो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इज नीडेड। किरण शिवपुरी जी आई हैं हमारे साथ, वेलकम करती हूँ। भारती रैना जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। जस किरण जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जयनारायण कश्यप जी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शबीर मुजाहिद जी कश्मीर से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर सरला मेहता हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुरेंद्र गोयल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत। निशा सैमुअल जी हमारे साथ जुड़ी है, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह अगर हम थोड़ी सी बातचीत थोड़ा हिंदी में भी करेंगे तो दैट विल बी मोर गुड। मैं ये कोशिश चाहूंगी कि आप थोड़ा हिंदी में भी बात करें। जी मैं जी आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी हम बात करते हैं नाट्य शास्त्र और संगीत को लेकर, तो आपने जो मुझसे हम जो बैक स्टेज बात कर रहे थे, इट वाज रियली गुड। तो मैं चाहूंगी उसके बारे में आप हमें जरूर बताएं। जी, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में। मेरा हिंदी थोड़ा टूटी मिक्स फूटी नहीं, है। मिक्स विल डू, Yeah, मिक्स विल डू, हिंदी hopefully बोथ विल डू। my mother-in-law, she's in Calcutta. She's watching this show, and she told me one day I was speaking. मैं थोड़ा हिंदी में बातचीत कर रहा तो मैं उन्होंने इतना गुस्सा आ गया, बोले तुम बिहार से हो कि इतना खराब हिंदी क्यों है तुम्हारा। मेरा टूटी फूटी हिंदी है, लेकिन मेरा कोशिश में है। कोई किसी का भी जन्म नहीं हुआ विथ एवरी नॉलेज। ठीक है, हाँ, और आप ऐसी बोल दीजिएगा अगर मैं स्विच ओवर टर्न ओवर, क्योंकि मैं हर वक्त अमेरिकन लोग उनका साथ काम करता हूँ, उनका नाटक में इधर में, तो इसीलिए उसमें चला जाता है। तो इफ इट गोज जस्ट रेज योर हैंड। Today's thing is also like a like
my journey like that. Yes. तो नाट्य शास्त्र when मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो इलाहाबाद का डिग्री मेरा 6 साल का डिग्री है संगीत में, संगीत भूषण या क्या कुछ कहते थे वहाँ। तो उसमें जब पढ़ाई करते थे तो नाट्य शास्त्र भारत का इतना बड़ा बुक है, उसमें चर्चा होता था। तो नाट्य शास्त्र में क्या है कि 3 चीज एक साथ है। क्या है? संगीत क्या है? संगीत जो है 3 चीज है। एक है पहले उसका है कि इंस्ट्रूमेंट, उसको वाद्य यंत्र, एंड उसका बाद क्या है कि नृत्य, डांस, एंड देन वोकल म्यूजिक, जिसको बोलते हैं कि संगीत को क्या बोलता है वोकल म्यूजिक को हिंदी में? क्लासिकल म्यूजिक? नहीं, म्यूजिक नहीं, क्लासिकल नहीं, हिंदी बोलिए उसको। हम लोग जब गाना तो गीत, नृत्य और वाद्य मिला के होता है नाट्य शास्त्र में, जिसको कहते हैं संगीत। लेकिन उसमें चौथा भी है, और 4th अध्याय में लिखा हुआ है कि अभिनय इज द 4th जो एलिमेंट है, जो 4 चीज उसमें, जैसा पंचभूत है तो संगीत में 4 है कि अभिनय। तो अभिनय हमें सीखने हुआ था, एंड छोटा से ही मेरा बहुत इंटरेस्ट था अभिनय में, और जात्रा पाला गान हमारा शहर में बहुत चलता था। तो हमने वो जात्रा पाला देखते जब थे कि हम तो इतना छोटा था, तो मम्मी का साथ जाते थे देखने में। हजारों आदमी, रात 10-11 बजे कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ, उनका ऑर्केस्ट्रा होता था पहले। बाद में मुझे पता है क्यों ऑर्केस्ट्रा होता है। तो इसको प्रील्यूड करते हैं। तो उसको सुन के मेरा थोड़ा थोड़ा ज्ञान आया इसमें से। फिर मैं गया इंडिया, भारत में हम हर जगह हम गए, बजाए, अवार्ड भी मिला, रेडियो से, टेलीविजन तो नहीं था। तो फिर उसका बाद मैं आ गया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में म्यूजिक जो होता है बहुत ही शानदार, और हमने तो सितार बजाने चालू किया। और कोई एक बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और रात को मैं हर वक्त जाते थे उधर, एक नाइट क्लब बोलते हैं। तो वहाँ गरीब म्यूजिशियन भी आते थे और बड़े बड़े म्यूजिशियन लाइक उस्ताद जाकिर हुसैन आते थे, माइल्स डेविस सैक्स का साथ उनका साथ बजाने। तो हमें भी थोड़ा चांस मिलता है कि थोड़ा जानने का लिए कि वेस्टर्न म्यूजिक क्या होता है, ओपेरा क्या है, ऑफ ऑफ ब्रॉडवे क्या है, ब्रॉडवे क्या है, ये सब मैं वहां जाके देखा कि वाह। और हम कंपैरिजन करने चालू किया कि वो इंडिया में हम तो देखते थे जो पुराने हमारे जो ये म्यूजिकल होता था, फिर क्या बोलता है जो धर्मीय पाठ होता है, उसमें भी कितना सुंदर म्यूजिक यूज होता था। ये थोड़ा थोड़ा आने लगा मेरा दिमाग में। फिर उसका बाद इट वाज अ कोइंसिडेंस कि हम एक जगह बजा रहे थे न्यूयॉर्क में, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम में। तो वहाँ डेविड एम्ब्राम और बहुत सब आदमी आए थे। हमें बोला कि आपको अगर और कुछ नॉलेज या पढ़ना है मेरा सितार वादन का बात, तो हम लोग आपके लिए एक नौकरी भी और उसका साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं, MA डिग्री, मास्टर्स डिग्री। मेरा इकोनॉमिक्स ओरिजिनल हम लोग बहुत मिडिल क्लास पीपल, तो पिताजी बोलते थे कि पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो दुनिया में कुछ नहीं। तो मैं अकाउंटिंग तो पिताजी बोले थे, तो मैं इकोनॉमिक्स लेके पढ़ा, अकाउंटिंग ये सब। लेकिन यहाँ आने का बाद मैं बोला कि हमारा सेइंग है कि जो ये जो शारो में मतलब डॉग का जो टेल होता है वो ऐसी टेढ़ा ही रहता है। आपको इसको स्ट्रेट करके 10 साल अंदर में कहीं डाल दीजिए, जब निकलेगा तो वो टेढ़ा ही निकलेगा। तो हम जब आए तो आया यहाँ पैसा भी थोड़ा आया बैंक से इधर उधर,
मैं बोला नहीं, मुझे कुछ करना है, इट्स सो बोरिंग ये लाइफ, ये मेरा नहीं है। एट दैट टाइम हमारा पंडित जी से मुलाकात भी हुई, उन्होंने वो क्रिएशन किए सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, तो इसलिए वो सिम्फनी हम सुनने गए थे एल स्टूडियो। एक अच्छा बंगला में आर्टिकल आया एक मैगजीन में, मेरा क्या एक्सपीरियंस न्यूयॉर्क में पंडित जी का साथ, पंडित रविशंकर। तो हाँ, तो उनका साथ तो ये करते करते मैं आया वहां से। अमेरिका इतना बड़ा जगह है, माने 4 हिंदुस्तान उसका अंदर चला जाएगा, इतना बड़ा है। तो वहां से मैं आया, 5 घंटा 6 घंटा लगता फ्लाइट में, बड़ा फ्लाइट में। तो आया, मेरा एक ब्लैंकेट था और मेरा 2 जीन का पैंट था और $2000 था। एक साल में मेरा भैया पैसा नहीं लिए, उनका साथ रहता था, तो 2000 ना $3000 था। और 2-4 एक पिताजी एक सूट बना के दिए थे, मैं बहुत पहनते थे वो सूट, कि तुम अमेरिका जा रहे हो तो सूट पहनो, तो इसलिए सब लेके मैं आ गया। और मेरा जो ओवरकोट था उसको फेंक दिया, क्योंकि कैलिफोर्निया में वेदर जो है इंडिया जैसा है, खाली एक ही चीज है कि यहाँ ड्राई, और इंडिया वेट, ह्यूमिडिटी। तो इसलिए मैं यहाँ आया, डॉक्टर ब्राउन ने मुझे एक्सेप्ट किया उनका अंडर। आई हैव टू टेल यू समथिंग अबाउट डॉक्टर ब्राउन। डॉक्टर ब्राउन का बारे में मुझे कुछ बताना चाहिए आपको कि 1938 में एक मूवमेंट हुआ था इन यूरोप, इन हॉलैंड, विथ याप कुंस, एंड ही said that not only Western music, जो वेस्टर्न म्यूजिक पाश्चात्य संगीत, वो एक नहीं है, दुनिया का हर जगह में म्यूजिक है, और उसको देखना चाहिए, उसका रिसर्च करना चाहिए। एंड फर्स्ट थिंग केम एज इंडोनेशिया एंड इंडिया। ओके, या तो देन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, तो लेकिन इंडिया से हमने पढ़ने चालू किया। एंड तो हम हर वक्त बोलते थे कि हमारा जैसा कल्चर और म्यूजिक नहीं है। डॉक्टर ब्राउन हंस रहे थे, इफ आई कैन गिव अप हमारा जो वेस्टर्न म्यूजिक, एंड मैं अगर मेरा PhD मृदंगम, साउथ इंडियन मृदंगम, 2 वॉल्यूम, इसीलिए सबको वी हैव टू नो, हमें 2 चीज जानना है, एक है कल्चरल रिलेटिविज्म, एंड जो है एथनोसेंट्रिक। उसका जो हिंदी जो है आप कर लीजिएगा, मुझे मतलब आई डोंट नो द हिंदी, बट व्हाट इट इज, इट्स अंडर एथनोम्यूजिकोलॉजी। हम जो स्टडी कर रहे थे पुरातत्व संगीत, तो जैसा एंथ्रोपोलॉजी का ये सेक्ट है, पहला वाला फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, फिर उसके बाद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन लिंग्विस्टिक, एंड देन द फोर्थ वन इज हमारा पुरातत्व संगीत। तो पुरातत्व संगीत हम पढ़ रहे थे, तो मुझे पता है, ओ वाह, धीरे धीरे दुनिया का बारे में पता रहा था कि नॉट हमारा खाली भारतीय संगीत नहीं, दुनिया में बहुत टाइप का कैटेगरी म्यूजिक का है। तो इसलिए हमारा म्यूजिक क्या है, मोनोफोनी, 1 लाइन ऑफ म्यूजिक। ये अभी बॉम्बे में जो बजाते हैं, दैट्स कॉल्ड हार्मनी, दैट नॉट आवर म्यूजिक, बस कुछ ना कुछ हमारा था, जैसा नाट्य शास्त्र में लिखा है। फिर 5th century or 10th century, at that time वृंदगान, you know, अभिनय का माध्यम से वृंदगान होता था। सब जगह आप देखिए कि म्यूजिक और गाना और एक्टिंग और जो एक्टिंग, ये सब मिला के ही सब होता है। हर चीज, आप रामायण पढ़िएगा, देखिएगा, अगर आप कुछ बोलेंगे तो उतना अच्छा लगता नहीं। अगर सुर होगा, हमारा 4 सुर था, 5 था, वेस्ट में
3 था लेकिन हमारा 4, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा 7 नोट आया। जो पाश्चात्य संगीत में भी वो 7 ही नोट है, लेकिन उसका ऊपर हमारा क्या है भारत में कि नोट कि 12, 7 और 5 नोट, उसको कहते हैं विकृत नोट, मतलब शार्प एंड फ्लैट, जो हाँ ये जो म्यूजिक है 12 हमारा, उनका भी 12। हारमोनियम आपका निकालिए, उसमें देखिएगा वाई सादा और उस ऊपर काला जो नोट है, सब मिला के 12 ही होता है। पियानो में भी है, हारमोनियम में भी है, सब जगह 12। लेकिन हमारा संगीतज्ञ ने, ये सब जोगी थे, तो वो जो सुनते थे दैट्स कॉल्ड श्रुति। तो इसलिए हम कहते हैं कि 12 रुपया और 22 पैसा इसका लिए हमारा जीवन है। जो श्रुति, श्रुतो इति श्रुति, जैसा संस्कृत नाटक में तत्सा खुन्नास पवित्र पांसु मपांग सुलना धुरी कीर्तनिया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं श्रुतिरन्न गच्छात। मतलब हम जो सुनते हैं उसी का रिप्रोडक्शन हमारा मुंह से निकलते हैं। हम जो सुने थे, जो ये इसमें ही लिखा है श्रुतो इति श्रुति। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। ग्रैमी के लिए भी आपका नॉमिनेशन हुआ है, और एक जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो शायद आपको ही मिला है एज एन इंडियन, उसके बारे में मैं चाहूंगी जरूर बताएं हमारे। हम पुरस्कार हमारे लिए कोई नया कुछ चीज नहीं है। मैं जब 7th ग्रेड में था, पढ़ाई में मीडियोकर था, लेकिन संगीत में पहला हम जो इंस्टीट्यूशन में सीखते थे हर साल वहीं वो प्रयाग संगीत समिति का अवार्ड प्लस लोकल कंपटीशन, ये करते करते मैं जब कॉलेज में आया तो थोड़ा आप जानते हैं कि आप लोग भी देखे हैं, आप लोगों का किड्स बच्चे लोग कैसा है कि वो जाता है जब कॉलेज में, थोड़ा क्या बोलते हैं कि वेरी हार्ड टू कम्युनिकेट, उसका जो स्टाइल। तो हमारा टाइम में भी वैसा ही था। तो कॉलेज पिताजी जाके कोई, मैं बोला कि मैं कंपटीशन में नहीं बजाऊंगा, पिताजी नाम दे दिए। मैं गया, आधा घंटा बजाया, 20 मिनट बजाना था, 5 मिनट एक्स्ट्रा बजाया। तो लाल लाइट रहता है ना, लाल ग्रीन से लाल हो गया। तो एट दैट टाइम कि उनका सेंटिमेंट मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन हमारा अभी लड़का है तो हमें वो सेंटिमेंट आता है, समझता हूँ। एट दैट टाइम हम तो समझ में नहीं आया, तो करके चला। पिताजी बोले सब बोल रहा इतना अच्छा बजा रहा था, तुम्हें प्राइज मिलने वाला था, लेकिन तुमने एक्स्ट्रा क्यों बजाया? तो हम कुछ बोले नहीं। नेक्स्ट डे जो अवार्ड मिलने वाला था, दे केम एंड दे सेड दैट यू कम टुनाइट। तो मैं बोला कि मैं क्यों जाऊंगा? तो मैं गया वहां और जल्दी जल्दी चले आया। नेक्स्ट डे वो लोग आके मेरे को 2 किताब दिए म्यूजिक का बारे में कि तुमने वी नो कि पर्पसली तुमने उसका रूल जो था उसको तोड़ दिया, बट दैट द वे आई ग्रो अप। एंड देन रेडियो कंपटीशन ये सब में मिल रहा था, एंड देन फर्स्ट अवार्ड आई केम इन वेस्ट। तो मेरा गुरुजी, एक मेरा ग्रांट मिला, इट्स कॉल्ड द नेशनल एंडाउमेंट फॉर आर्ट्स एंड कैलिफोर्निया आर्ट काउंसिल, टू गो फ्रॉम सैन डिएगो टू इधर सैन फ्रांसिस्को। वहाँ मेरा उस्ताद रहते थे अली अकबर खान। तो मैं उनका पास जब पढ़ते थे, डॉक्टर ब्राउन ने एक स्पेशल ग्रांट हमारे लिए दिए, तो उनका पास जाते थे और हम ऑर्केस्ट्रा बनाते थे। पहला वाला हम कॉलेज में थे, इट वाज अबाउट ए वेस्टर्न ड्रामा, आई थिंक मिडसमर नाइट ड्रीम बाय शेक्सपियर। तो उसका लेकिन उसका जो स्क्रिप्ट और ये सब हम तैयार किए थे दूसरे का साथ, तो उसका म्यूजिक में इंडियनाइज्ड किए, वेस्टर्न तो था ही, तो इसलिए उसका अवार्ड मिला। कागज में बहुत चर्चा हुआ कि ये आलोक दासगुप्ता इंडिया से आया, पढ़ता है डॉक्टर ब्राउन के अंडर। देन क्या हुआ कि हम करते 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 आई बिकेम पार्ट ऑफ माई म्यूजिक एंड माई अभिनय एंड ऑल केम लाइक दैट. So that's started. Then I got Chopin Award, which was very prestigious place
Probably you know about Bankim Chandra Chattopadhyay, the Yes. song Yes. the Vande Mataram, and Yes. yeah, and this was tuned by Rabindranath Tagore's guru Jodu Bhatto, which is from a very musical, बहुत musical जगह है इधर बिष्णुपुर, कलकत्ता के Mm-hmm. सामने. तो वहाँ मल्लराज, मतलब वी टॉकिंग अबाउट बिफोर द इस्लाम, दैट दे Okay. वो लोग सपोर्ट करते थे म्यूजिक. तो जोजू भट्ट कोर्ट म्यूजिशियन थे वहाँ का. उन्होंने ये हम अब अभी जो सुनते हैं वंदे मातरम, ये जो संगीत, ये जो म्यूजिक, ये उनका कॉम्पोजिशन है. जदू भट्ट हु वाज सपोज टू बी उनका रविंद्रनाथ टैगोर का गुरु थे वो म्यूजिकली. एनीवे, तो अवार्ड बहुत मिला. इंग्लैंड गया, वहाँ भी कुछ काम किए, इधर उधर करते करते मैं इसमें ही मतलब ग्रो अप, धीरे धीरे बड़ा हुआ. तो शोपान अवार्ड जो मिला वो मल्लराज का है, उधर विष्णुपुर घराना का अवार्ड. तो उसको करते करते मैं, और क्या बोलेंगे, उधर तो बहुत कुछ है. ये वाला जी. आपका चार इसको शेयर कर सकता हूँ. दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड इन अमेरिका. यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड क्या है कि इसको कहते हैं कि नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन एसोसिएशन, NFIA, सबसे बड़ा यहाँ अमेरिकन और इंडियन लोग अपने बनाया. तो वो वाशिंगटन में बुलाया था मुझे. यहाँ से करीब 3000 माइल होगा. तो वहाँ गए थे हम. तो वहाँ इट्स रिटन दैट in the field of performing art, sitar, playing in classical feature and acting and music. So 20th national convention, they gave me this award on November 17th, 2018. I got this award. This is the highest award. Now I will tell that one thing, that not the world is, हम जब कुछ मिलते ना, हम सोचते कि ये मेरा ये क्यों नहीं मुझे मिलेगा, ये उसको मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलेगा. हमने इतना काम किया, ये सबका अंदर में जो होता है कि हमें क्यों नहीं मिलेगा. हम ये काम किया, इसका मुझे बॉस, आई एम नॉट द बॉस, क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं मिलता पोजीशन. तो इसीलिए हमारा वैसा ही आ गया कि हमें क्यों नहीं मिलेगा. तो भगवान ने मुझे चांद भी दिया. तो बहुत वेस्टर्न म्यूजिक में बजाया सितार. तो आप सुन भी लीजिएगा, गूगल में आलोक दासगुप्ता एक कमर्शियल देखिएगा कि हमने एक कमर्शियल में ट्विक्स बोल के एक चॉकलेट में बजाया, आई गॉट द मनी एंड from that probably some part for my house, down payment. पर उसका बाद एक जगह गॉड, तो हम सोचे कि भगवान ने अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात, लेकिन हमारा टाइम नहीं था ये सब करने का. तो क्या हुआ कि एक पंजाबी लेडी मुझे फोन किए, लाजोहर ने. तो बोला कि मेरा लड़का रॉक एंड रोल करता है, तो अभी एक रिकॉर्डिंग होगा, तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा. तो मैं बोला कि भाई इसमें क्या आता जाता है पैसा, चलो. मैंने 1-2 घंटा काम किया, मुझे अच्छा ही पैसा दिया, खास पैसा. 1 साल का बाद, इसको अंग्रेजी में बोलना ही है मुझे. बिल्कुल बिल्कुल. दिस पार्ट एंड देन इसका बाद मैं बताऊंगा कि इसका क्या सामंजस्य है उनका साथ. तो उसमें बोला 2 साल का बाद मेरा नेफ्यू, अपना भतीजा, न्यू जर्सी में रहता था, तो मेडिकल पढ़ता था. वो फोन किया, hey Kaku, means uncle, they speak always English in America. Hey Kaku, I saw you in the television and they were showing you played that Hey You, that song with Gwen Stefani, one of the famous song. You don't know how many sell at that time, 9 million. Finally 14.5 million उसका सेल हुआ.
जो सीडी का, तो इट्स कॉल्ड ट्रैजिक किंगडम। और नो डाउट बोल के उसका जो ऑर्केस्ट्रा दल का नाम था। तो ये जब हमें तो कुछ नहीं मिला क्योंकि अवार्ड नहीं मिला। नेक्स्ट ईयर दे गॉट, आई वाज नॉट दैट लकी, द ईयर इट वाज द हाईएस्ट सेल, लेकिन नहीं वाओ, वाओ, मिला। वाओ। तो इस ऐसी करके बहुत बहुत भी अवार्ड आया गया, मेरा याद भी नहीं रहता है, उसमें Yes. कुछ आता You नहीं। have yes, you have your own school and LA में आप जो म्यूजिक सिखा रहे हैं, इंडियन म्यूजिक को अब्रॉड में आप सिखा रहे हैं, उसके बारे में आई रियली वांटेड टू नो बिकॉज दिस इज अ बिग कंट्रीब्यूशन कि आप इंडियन म्यूजिक को आप वहाँ फॉरेन के स्टूडेंट्स जो हैं उनको सिखा रहे हैं। और क्या कहेंगे आपका जो वहाँ एक्सपीरियंस रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ? आई वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। या देखिए, एक चीज देखिए, these are the Indian notation. Yeah. We जी। got my wife, you know, she's very good in computer, and also she's a teacher of Indian vocal music. However, Okay. we compose, this is in the orchestra. This is orchestra Yes. Kirwani, Okay. which in the west इसको कहते हैं द मेलोडिक हार्मोनिक माइनर। तो एक ही स्केल है, किरवानी हम लोग बोलते हैं। तो क्या हुआ कि हमें यहाँ रहने का लिए अपना खाना टू गेट द फूड एंड ऑल हमारे इवॉल्व करना है कि आप Yes, कहाँ रहते exactly. हैं। आप अगर Exactly. दिल्ली में रहते हैं, अब देखिएगा कोई आते हैं बंगाल का कहीं गांव से, लेकिन दिल्ली में आके हिंदी जो बोलता है पंजाबी हिंदी दिल्ली में, तो दैट नॉट ए प्योर हिंदी, लेकिन वो एक्सेंट, वो सोचते हैं कि ऐसे एक्सेंट लगाने से ही अच्छा हो जाएगा, तो ये सोचते हैं। तो हम लोग भी यहाँ रहने का लिए जो तरीका सोचा, तो उसको नोटेशन जो बनाया, जैसा आप सोचिए कि हम लोग यहाँ इसको मीरखंड बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, जैसा सारेगामा रेसागामा सागा रेमा गा सारेमा रेगा सामा गा रे सामा। तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम लोग वेस्टर्न स्टाइल में तैयार किए। तो इसलिए वेस्टर्न और इंडियन का कॉम्बिनेशन करके हम लोग अमेरिकन को सिखाते हैं और इंडियन को भी सिखाते हैं। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप सबको दिखाइएगा। आपका टाइम टुमारो 9:30 बजे, ये लिंक में आप जाइएगा तो देखिएगा कि स्किंटिलेटिंग साउंड ऑफ संतूर। तो एनीवे, तो क्या बोल रहे हैं कि हमारा स्कूल में जो सिखाते हैं हम लोग वोकल म्यूजिक, मैं तबला टीचर है, और हम इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं जैसा वायलिन, वियोला, चेलो, और फिर उसका बाद सितार, ये सब हम सिखाते हैं। तो इसीलिए इंटरेस्ट यहाँ का खाली देसी नहीं, विदेशी लोग भी बहुत सीखते हैं। It's a big thing. This is a big thing. हाँ, एक वॉइस बोल के शो होता है NBC, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, तो उन्होंने भी हमारे पास सीखे। अब वो कंपोजर है तो हमारा पास सीखते हैं। ऐसी बहुत है जो सीखते हैं उनका कैरियर के लिए। तो इसीलिए हमारा स्कूल चलता है आज 40 साल से। 40 साल हो गए, बिल्कुल। तो नॉन प्रॉफिट। बोलिए। यस, आई वांटेड टू नो आल्सो अबाउट दैट, जो आपका लाइफ का अभी तक का बेस्ट कॉन्सर्ट जो रहा है। देखिए, मेरा बेस्ट कॉन्सर्ट इंडियन और वेस्टर्न बोथ। तो इंडियन कॉन्सर्ट जो है समथिंग इन न्यूयॉर्क हमने किए थे, पंडित भिजी जोग हमारा और उस्ताद अल्लाह खान साहब भी वो कॉन्सर्ट में थे वहाँ। तो दैट्स द बेस्ट। इट्स लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क में, 1200 आदमी फुल, और ऐसी एली में भी थे। तो वो इंडियन रागा जो बजाए थे वहाँ, वो सबसे बड़ा। और मेरा जो है 18,000, दिस एक्सपीरियंस, 18,000 आदमी इन हॉलीवुड बोल। लुक ऑन योर इन द गूगल हॉलीवुड बोल, तो गूगल जैसा है ऐसी। ये तो हॉलीवुड बोल में कुछ साल आगे, 10 साल आगे, बीटल्स का स्टिल इट्स हाईएस्ट सोल्ड एल्बम, इट्स कॉल्ड सार्जेंट पेपर।
तो उसका रिप्रोडक्शन चिप ट्रिक बोल के एक बहुत बड़ा मतलब म्यूजिक ग्रुप है। तो हमें फोन आया हॉलीवुड बोल से कि एक गाना है, आप उसका आपका ऑर्केस्ट्रेशन बजाना है वहाँ, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में है, लाइव में जो होता है उतना अच्छा नहीं होता है। तो दिस टाइम द सिम्फनी विल कम विथ यू, ये सिम्फनी। तो 2 गाना हमने बजाया, एक है विद इन यू विदाउट यू। तो आप अगर कि आलोक दास गुप्ता इन इन हॉलीवुड बोल, तो आप देखिएगा विद इन यू विदाउट यू, इट्स बेस्ड ऑन इंडियन म्यूजिक, राग जोग। तो वेरी ब्यूटीफुल, तबला का साथ, सितार, और उसमें 3 शो था, एवरीथिंग सोल्ड आउट। मैंने ऑर्केस्ट्रा किया था, 2 तानपुरा, और उसके बाद बड़े कलाकार सुब्रमण्यम है, तो उनका लड़की जिंजर शंकर, वो असल में एसराज था, तो उसको चेंज करके दिलरुबा थोड़ा बड़ा, लेकिन उसको चेंज करके मैं इलेक्ट्रिक वायलिन लगाया। तो इलेक्ट्रिक वायलिन, सितार, और 2 सितार, और ऑर्केस्ट्रा हम किए थे। तो ऐसी कि वेस्टर्न म्यूजिक तो बहुत लाउड होता है, जितना भी बीटल्स बोलिए अच्छा है, थोड़ा लाउड, लेकिन जब 10 आफ्टर द 10th सॉन्ग, हाँ 10th सॉन्ग हुआ, देन हमारा हुआ, everybody started, it was dark, I still remember, see my good mom, and there I said they have some like a Diwali kind of thing in their hand with green color like this, doing this, and I saw, well, I was very nervous because it's a 1 second, if here to there, that's it, da 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 da, question answer, da 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 da, like this, going, and when it finished, I said like this, and I saw everybody's telling me, look over here, look, even the symphony people were telling, look over there, and they said, can you hum the notations? Can you hum the notations thoda sa? Yeah, तो सब हाथ क्लैप करके बोल रहा है कि ऑनकोर सेकंड टाइम बोल रहा, तो तो ये नी सा गा मा पानी नी धा पा दा रा 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 दा ना ना दा रा 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 दा रा दा रा दा रा दा. The second repetition is from sitar, the violin going on that one. Da ra 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 da ra da da ra da da na. तो इधर कुछ मैं चेंज करके इसको रिप्रोडक्शन किए कि ये भारतीय संगीत है, तो हमने इसको अपना से बना के जो पेश हुआ, उसका 3 शो, उसका बाद नेक्स्ट ईयर 3 शो, देन 9 शो हुआ वेगस में, लास वेगस में, हिल्टन होटल में 9 शो, एंड देन फाइनली 36 शो इन पेरिस होटल में, तो उसका 500 लोग आते हैं हर जो शो, इट वाज फुल। मैं ऐसी कभी नहीं देखा जीवन में, कौन जापान से आ रहा, कौन न्यू जर्सी से आ रहा, कौन ऑस्ट्रेलिया से आ रहा, इतना बिगेस्ट फैन है। और बाद में ऊपर से सब कागज निकलता था, लव साइज का बीटल्स का एक गाना होता था, दिस इज कॉल्ड द 35 साल ना 50 साल 48th ईयर ऑफ सार्जेंट पेपर, दैट द हाईएस्ट एल्बम गोल्ड। तो ये मेरा I just wanted to know one more thing. Yes, this is the biggest thing. I have one more question in my mind, and that is कि हम बात कर रहे थे यात्रा की, जब आपने स्टार्ट किया था, you were talking about यात्रा, और आपने ये कहा था कि खत्म हो गया है, it's on the verge of diminishing. What can be the reason? इसको रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? As an expert आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर कोई खत्म हो जाता, उसका पीछे ऐसी नहीं है कि आदमी लोग उसको पसंद नहीं करता है, बिकॉज इससे एक चीज आपको बताऊं कि आप कोई खाना खाते थे आगे जब छोटे थे, लेकिन कुछ कारण से वो खाना खत्म हो गया। इसका मतलब तो ये नहीं है कि हमने वो खाना नहीं खाएंगे, अगर कोई अच्छा से पेश करेगा हम फिर खाएंगे वो खाना। जो नाटक हम देखते थे हम जब छोटे थे, तो द ट्रेडिशन केम, टेल यू द ट्रूथ, द ट्रेडिशन came
फ्रॉम द पौराणिक, पुराण से। Yes, हम yes. जब छोटे थे पुराण का नाटक मतलब यात्रा होता था, इट वाज ओपन, इट लाइक इट Yes, एवरीबॉडी सिट्स लाइक दैट। देन बाद में आया ऐतिहासिक, जैसा yes. सिराजुद्दौला, जैसा Mhm, औरंगजेब, ये सब हुआ। mhm, फिर उसके बाद धीरे धीरे सामाजिक पाला आने चालू किया। तो हमारा तो अच्छा ही लगता है, हम जब छोटे थे सामाजिक पाला, लेकिन समाज जो है कॉम्प्लेक्स बनते गया हमारा। mhm, अभी तो समाज वैसा नहीं है जैसा आपका जॉइंट फैमिली था आगे, जैसा आप उसको अच्छा बोलिए कि खराब बोलिए तो ये आपका ऊपर है, व्हाट इज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जॉइंट yes. फैमिली। तो लेकिन आपको एक ही जगह अभी जॉइंट फैमिली मिलता है, बोलिए तो Mhm. कहाँ मिलता है जॉइंट फैमिली? थोड़ा अच्छे से सोच के बोलिए। नहीं यार, रोज शाम को आप 5 बजे या 6 बजे टीवी का सामने पहुंच जाइए, जी टीवी, सोनी टीवी, कोई टीवी में देखिए, सब जो फैमिली दिखाता है, सब फैमिली उस पे जॉइंट फैमिली रहता है, बड़े बड़े Mhm, घर मकान, ये सब, ये पुराना वाला ही घर को लेके आते हैं, लेकिन कितना mhm, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, कितना mhm, अच्छा mhm, चीज क्या है जानते नहीं उसमें, लेकिन समाज का जो जो प्रतिफलन होता है, समाज का mhm, जो आना है, हाँ, तो वो ऐसी, तो इसीलिए क्या हुआ कि यात्रा में धीरे धीरे सोशल जो एक्टिंग, मतलब समाज का जो होते होते अभी कितना डर्टी हो गया, समाज भी डर्टी हो गया हमारा जमाना में। बट डोंट टेक इट बैड वे, जस्ट थिंक अबाउट दैट। mhm. इन माय टाइम, लिव टुगेदर आफ्टर वेस्ट, कमिंग इन वेस्ट, नथिंग फॉर मी। तो बट इन हमारा टाइम में लिव टुगेदर वाज अ बिग डील। अभी तो हर जगह होता ही है, तो उसमें क्या, समाज तो नाटक की जो प्रतिफलन, जो एक्टिंग है, Yes. काम कहाँ से आता है, समाज से। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ समाज, जब इसका प्रतिफलन यात्रा में आया, नहीं आना चाहिए था, जैसा वेस्ट में नहीं आया, जो बनाया था ये हमारे बेटोफेन, जो बनाया था, Beethoven, yeah. हाँ, ज्यादा से ज्यादा मोत्सर्ट का था, हाँ, Moses, yeah, Moses. चाइकोस्की, मोत्सर्ट, उन्होंने Mhm, इतना था कि उसको रख दिया। एक mhm, छोटा सा स्टोरी आपको बताता हूँ कि पहला जब मूवमेंट आ रहा था नया कुछ करने mhm, का, 1914 में एक बहुत बड़ा कंपोजर, रशियन कंपोजर थे। बाद में वो mhm, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का उसमें प्रॉब्लम हुआ था, वो जो वार, देयर वाज अ बिग वार, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वो चले आए mhm, वेस्ट में। तो हम मतलब अमेरिका में चले, इगोर स्टीवेंसकी हिज नेम, उनका एक mhm, बहुत बड़ा पाला, मतलब जो जो ओपेरा बोलते हैं, तो उन्होंने किए थे। एंड उसका नाम है राइट ऑफ द स्प्रिंग, अर्थ का फॉर्मेशन, एग्जैक्टली लाइक मदन लाल कोशेट। व्हाट ही डिड, आई टोल्ड यू, मदन लाल कोशेट जी, mhm, कि हमें अभी भी हम सोचते हैं कि मदन लाल कोशेट क्या बनाए थे, जब वो भाखड़ा नंगल में mhm, जो आपका डैम बनाए थे, तो उसी का आधार में पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति जी सब बैठे थे, उनका सामने दिखाए थे हाउ हार्ड टू डू दिस डैम with the form of Puranic story and modern all together. And we are talking about 1960s like that, 1957, 60s like that. Same thing what from Chandigarh, Madan Lal Koshan ne dikhaya. Same thing he did. One composition is called Rite of the Spring. तो आदमी लोग को तो पता नहीं था, कोई देखा ही नहीं था कि लेडीज लोग विदाउट बैले शूज एंड द बैले इज पॉसिबल. It was a ballet, but kind of acting and all, how the art yes, yeah. formation like that. पृथ्वी का फॉर्मेशन, तो आदमी लोग सब फ्रांस में जब हुआ था, पेरिस पे अंडा फेंक रहा था, आलू फेंक रहा था। मेरा प्रोफेसर और 1970 में 80s में जब हम पढ़ने गए, हमें बोला जाओ देख के आओ, तो मैंने आया, हमें बोला लिखो, मैं बोला इतना बकवास म्यूजिक हमने कभी सुना नहीं, एक्टिंग और म्यूजिक इतना बेकार एकदम। तो प्रोफेसर हंसने लगा, बोला लेट द 5 years गो, यू विल द, नाउ मैं हफ्ता में एक बार सुनता हूँ।
So a complexity. This is the thing. The complexity when it comes in acting world. आप अगर ऐसी कीजिएगा कि पुराना टाइम में तो हाँ आएंगे आदमी लोग अप्रिशिएट करेंगे लेकिन आदमी want to everybody want to do the contemporary the problem the mother and son father all this complexity like that in this is the main reason the essence of real Jatra God. ठीक है, मैं अब आपसे चलते चलते ये जानना चाहूंगी एज एन एक्सपर्ट जो नई जनरेशन है आज की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देंगे? एक्टिंग का हम एक्टिंग अपने आप नहीं विद म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट. हाँ परफॉर्मिंग आर्ट म्यूजिक देखिए कोई कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है. देखिए द बेस्ट example is A.R. Rahman. What can be a classical music can be formed in the world and got so many nomination award for Oscar, for Grammy and all. क्यों पागल है उनका म्यूजिक में आदमी कुछ तो रहता है ना उसमें. रागदारी भी जितना है फोक म्यूजिक भी उतना है फोक लड़ा. फिर उसका बाद उनका अंदर में क्लासिकल है वेस्टर्न म्यूजिक है. तो कोई व्हाट डॉक्टर ब्राउन हमें जो टीच किए थे कोई चीज खराब नहीं है. तो आपका जो व्हाट यू आर इन ए शेल इनसाइड द शेल. रविंद्रनाथ टैगोर बोले हैं भेंगे मोर घरे चाबी निये जाबी के हमारे. means who will come? I'm inside a room, I'm locked inside a room. Who can come and take me and show me the world like that? So ऐसी है कि आदमी कुछ ज्यादा दिन याद नहीं रहता. कुछ भी आप कीजिए देखिए कि आदमी लोग कभी मतलब ज्यादा दिन just as Shakespeare said that this is the most unkindest wrong English. This is the 800 प्रयोग बोलते हैं संस्कृत में. ऋषि उवाचो इति 800. तो हार्ट जो बोलते हैं दिस इज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट प्लेस. तो नाटक का भाषा में जूलियस सीजर में ऐसी बोले थे. तो लेकिन आदमी लोग को कभी ज्यादा दिन याद नहीं रहता. इसलिए ऑलवेज क्रिएटिविटी कम फ्रॉम दैट. तो नया जनरेशन के लिए हमारा ये कहना है नो योरसेल्फ आत्मानं विद्धि. आपको अपने का बारे में जानना चाहिए. इफ यू नो योरसेल्फ देन यू विल गिव इट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया का हर जगह में आप जो समझे हैं वो करेंगे. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब जो अब ज्यादा दिन तक स्टडी करे म्यूजिक कि म्यूजिक एक्टिंग कुछ भी करे अपना. जैसा हमारे गुरु जी थे. He's not a guru, he's 2 years elder than me, but the knowledge, he told me, तुम इसको पढ़ो, ये किताब पढ़ो, ये ब्रेक्ट का है, ये स्टानिस्लावस्की का है, ये संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम और कालिदास मेघदूतम लाइक दैट. हमें कैसे आया पता? हम कुछ ही नहीं जानते हैं. बहुत मेरा नॉलेज बहुत कम है. लेकिन मैं इसी से ये समझता हूँ कि सबको एवरी डे यू हैव टू नो द रूह मतलब अंदर का नॉलेज. दैट will come to everybody, then they can share their knowledge to them. So profound. It was really great talking to you. It was really enriching talking to you. और बहुत मजा आया आपसे बात करने में. हमारे से बहुत सारे एसटी व्यूअर्स भी जुड़े हैं. उनके इतने अच्छे कमेंट्स हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप हमारे शो में आए और इतना अच्छा आपने शेयर किया अपनी जर्नी को, म्यूजिक को. थैंक यू आलोक दास गुप्ता जी. थैंक यू. लेकिन मैं खत्म करने का आगे मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे. जी. मैं हिंदी में एक नाट्य रूप दे रहे हैं आपका पास. जब हम जाएंगे दिल्ली आपसे मुलाकात करूंगा, उसका आगे ही भेज दूंगा. तो ये नाट्य रूप है. देयर वाज ए फेमस राइटर अल्बेयर कामू. तो उसका जो इंग्लिश वर्जन है या हिंदी वर्जन है उससे मैं लिया हूँ द स्टोरी कॉल्ड द प्लेग.
तो उसका एकदम exactly the what's happening now, the story. Everything closed, everything. So plague people hundreds and thousands, 100 years ago, 100 साल आगे, thousands of people died. कितना आदमी मरे. तो हाँ, उनका बिल्कुल। किताब जो है द प्लेग, तो उसका मैं नाट्य रूप कोशिश कर रहा हूँ. अगर देंगे तो आप पढ़िएगा, अच्छा लगेगा तो सबको श्योर, साथ अवार्ड दीजिए. थैंक यू, श्योर, थैंक यू, ओके, थैंक यू, बाय. थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि हमारे साथ जितने एस्टीम्ड व्यूअर जुड़ चुके हैं और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ 3 दिन की ब्रेक के बाद आपसे मिली हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार फिर से हमारे साथ इतने व्यूअर्स जुड़े हैं। एक तरह से बहुत हौसला अफ़ज़ाई होती है। कल शख्सियत का अगला अंक जो होगा उसमें हमारे साथ कश्मीर से जुड़ेंगे जो शख्सियत हैं, एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर का और संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी है और ही इज़ एमिनेंट फोक सिंगर एंड ही इज़ लिरिसिस्ट, ही इज़ म्यूजिक कंपोज़र आल्सो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है। कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से हमारे से जुड़ेंगे गुलजार अहमद गनी साहब। तो कल शाम को 7 बजे रहिएगा हमारे साथ और अच्छा लगेगा, हमें एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है, हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी होती है। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।